Today I am going to discuss the roles and responsibility of community health nursing personnel in family health services. BSc Nursing 4th year, Unit 4. So we will start with the introduction. The family is the unit of service in all healthcare delivery. The health of one member affects the welfare of other members in the family. So any family member which is affected with the disease affects the other family members. Then every family is unique and it is affected by every aspect of community life. The health service provider has to understand family ways, tradition, customs and beliefs of the family. So the community health nurse has to understand the tradition, the family customs and beliefs of the family. According to that, the community health nursing personnel has to maintain the IPR and provide the care according to the need. Now we come to see family health. Family health is part of community health. It is a basic part of the community health. Family health is more than the sum of personal health of individual. So the family health is having more importance regarding personal health of an individual. Family health is a unit of healthcare. It is a basic unit of healthcare. So now we will discuss about the definition of family. Family is a group of biologically related persons living together and sharing the common kitchen and purse. So family is a group of biologically related persons. That means they are connected with blood relation and living together. They are living together in a house, sharing the common kitchen and purse. That means sharing their money. Then family is group of two or more persons related by birth, marriage or adoption and residing together in a household. The definition is given by US Bureau of Census 1980. Then how does we view a family? There are various of ways. First is biologist view, psychologist view, economic views, sociologist views. So now we will discuss about the family health. The family health definition is as similar as the definition of health. A state of positive interaction between family members which enables each member of the family to enjoy optimum physical, mental, social and spiritual well-being. Alright. Now we will see the functions of the family. Socialization of family members. Socialization of family members means एक फैमिली जो होती है हमारे अपने मेंबर्स को सोशलाइज करती है एक सोसाइटी में. उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स इकोनॉमिकली अपने फैमिली में अपने फैमिली बैकग्राउंड में स्टेबल करते हैं. फिर है सेक्सुअल नीड्स, केयर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स. केयर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स मीन्स जो डिपेंडेंट है, जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द एडल्ट family members, so they care the family members. Then next है emotional support for members. They also provide a emotional support for the members. They interact between each other and provide proper emotional supports. Then next point is satisfy social, intellectual, emotional and psychological needs of the member. According to the needs, they satisfy socially, intellectually, emotionally and psychologically. So next point is teaches children rules for behavior and socially approved conduct. फैमिली का ये फंक्शन भी होता है कि अपने चिल्ड्रन को वो सोसाइटी में बिहेव करना सिखाती है और सोशली किस तरह से एक्टिव रहना है वो सिखाती है. फिर नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइड्स मेंबर्स विथ सेंस ऑफ फैमिली आइडेंटिफिकेशन. फैमिली मेंबर्स की हर एक फैमिली मेंबर्स की एक डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन होती है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है, जो कि एक फंक्शन होता है फैमिली मेंबर्स का. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है सिकनेस रोल. इंटरेक्शन अमॉन्ग फैमिली मेंबर्स इन द हेल्थ, डिजीज़, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन. सो ये भी एक फैमिली का फंक्शन होता है. अगर कोई फैमिली मेंबर फैमिली में डिजीज़ कंडीशन में सिक है तो उसे प्रॉपर केयर करना, काउंसलिंग करना, रिहेबिलिटेशन, इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ फैमिली.
Now next we will come to the function of family by WHO. फर्स्ट फंक्शन इज़ बायोलॉजिकल में रिप्रोडक्शन है. रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड अप टू एडोलसेंस और मैच्योरिटी. देन नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना. देन प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली मेम्बर्स. सेकेंड फंक्शन ऑफ फैमिली इज़ साइकोलॉजी में पहला आता है आपका इमोशनल सिक्योरिटी ऑफ members. Emotional security is a measure of stability of an individual's emotion state. Okay. Then next है sense of identity of members. मतलब उस मेंबर की उस फैमिली ग्रुप में क्या आइडेंटिटी है या फिर उसका क्या स्टेटस है. फिर नेक्स्ट है मैच्योरिटी ऑफ पर्सनैलिटी. इट मीन्स इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग एडोलसेंस इन द फैमिली. कि इमोशनली कितना स्टेबल है एक फैमिली मेम्बर. देन नेक्स्ट है मेक रिलेशनशिप आउटसाइड द फैमिली. ओके, दैट मीन्स मेकिंग फ्रेंड सर्कल्स, कलीग्स एक्सेट्रा. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दैट इज cultural function of the family. In the socio-cultural function of family, transfer of values related to behavior, tradition, morals. That means we exchange or transfer our values, our behavior, our traditions to the other people. Then socialization of children. That means a family socialize a child to live in the society. Next point of function of family is economic acquisition of resources. That means how to acquire the resources for the family. Then how to distribute the resources towards the family. Then economic buffering of members of family. जब फैमिली में जब इकोनॉमिकली चेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तब फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करती है. देन कम्स द एजुकेशनल में है इंक्लूजन ऑफ स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड नॉलेज. सो हाउ द फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड द नॉलेज, डेवलप द एटीट्यूड एंड द स्किल्स फॉर द चिल्ड्रन. Then next is preparation for the adult life. How does a family prepare a child for his or her adult life? Next is determinants of family health. First is living and working conditions. So एक फैमिली की जो लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशन होती है उसके ऊपर भी फैमिली हेल्थ डिपेंड करती है, जिसकी वजह से फैमिली हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है. अगर अच्छी कंडीशंस है तो फैमिली की हेल्थ जो है या फिर किसी इंडिविजुअल की हेल्थ जो है वो अफेक्ट नहीं होती है. फिर नेक्स्ट है फिज़िकल एनवायरनमेंट. सो एक फैमिली की जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट है साइकोसोशल एनवायरनमेंट. साइकोसोशल एनवायरनमेंट मतलब इट मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन द फैमिली और फैमिली मेम्बर्स एंड हाउ डज अ फैमिली रिस्पॉन्ड टू देम. ओके, किस तरह का स्ट्रेस जो है उनके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर, फैमिली या फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, और उसके रिगार्डिंग फैमिली जो है किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है. नेक्स्ट है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस. सो एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत अफेक्ट करता है एक फैमिली हेल्थ को. अगर प्रॉपर एजुकेशन है, प्रॉपर लिटरेसी है, सो the family health will be stable and the economic status is good, so the family health will also be good. Next is health practices में किस तरह से पर्सनल हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, होम हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है, वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज कल्चरल फैक्टर एंड लास्ट इज जेंडर एक्सेट्रा. Now we will see the scope and components of family health. So first is problems faced by family. Broken homes मतलब कि जिसमें कि फैमिली मेम्बर्स या फिर पेरेंट्स जो है अलग अलग हो जाते हैं, जिसको कि एग्जांपल के तौर में हम कह सकते हैं डाइवोर्स्ड. फिर उसके बाद है ड्रग एब्यूज़.
ड्रग अब्यूज़ में जिसमें कि एडिक्टेड हो जाते हैं ड्रग्स के। फिर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मीन्स हैबिट्स ऑफ कमिटिंग क्राइम्स, बार बार बचपन से ही क्राइम करने की आदत पड़ जाना। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा छोटे बच्चों की कभी कभी आदत पड़ जाती है कुछ कुछ बच्चों की चोरी करने की, है ना, झूठ बोलने की। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। देन नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, अनमैरिड मदर्स, टीनेज प्रेगनेंसी। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फैमिलीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका क्या क्या आ जाता है? सेफ मदरहुड, ANC दैट इज एंटीनेटल केयर, डिलीवरी केयर, PNC पोस्टनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज। न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज आपको सब मालूम है। क्वाशियोकोर एंड मरासमस इज द कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज। लो बर्थ वेट बेबी, है ना। नेक्स्ट इज STIs, RTIs दैट इज STI इज sexually transmitted infection, RTI is reproductive tract infection, HIV, AIDS, legal abortion, infertility services, adolescent health. So these are the component of family health, comes under the reproductive health. Now next is the child health. चाइल्ड हेल्थ में पहला आपका आता है चाइल्ड बियरिंग एंड रियरिंग। चाइल्ड बियरिंग मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, एंड चाइल्ड रियरिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड अप टू एडोलसेंट और मैच्योरिटी, मतलब एक बच्चे को बड़े होते तक उसका लालन पोषण करना। दैट इज़ कॉल्ड एज चाइल्ड रियरिंग। नेक्स्ट इज चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में आपका आ जाता है न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। Then after mortality and morbidity of children. So mortality and morbidity, as you all know, that means disease rate and the death rate. Next is social problems of children. Social problems of children में आपका आ जाता है child abuse, abandoned or street children, child labor, juvenile delinquency, battered baby. Now child abuse means physically or mentally the child has been abused. Then abandoned or street children, घर से भागे हुए बच्चे या फिर स्ट्रीट में रहने वाले बच्चे। चाइल्ड लेबर, as you all know. juvenile delinquency, as I have further explained you. Then battered baby syndrome. Battered baby syndrome, it is a form of child abuse, a disease in which children are physically abused. Now we will see the gender issues in the family. First is GBV, that is gender based violence, किसी जेंडर को लेके उस पर वायलेंस होना। गर्ल्स ट्रैफिकिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग मीन्स किसी पॉलिसी को बनाना किसी फैमिली में जिसमें कि दोनों का कंसर्न हो। फैमिली में दोनों का कंसर्न मीन्स दोनों जेंडर का कंसर्न हो। फिर उसके बाद फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन। फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन को फीमेल सर्कमसिजन भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ रिमूवल ऑफ सम और ऑल द एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटेलिया। ओके, नेक्स्ट इज फीमेल फोर्टिसाइड्स, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन। सो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज एजिंग, प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, एक्टिव एजिंग, है ना। फिर सिक्स्थ पॉइंट है आपका मेंटल हेल्थ, सिचुएशन ऑफ मेंटल हेल्थ, इट कॉजेज एंड प्रिवेंशन, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज। नाउ वी विल कम टू द रोल्स ऑफ फैमिली एंड पीयर ग्रुप इन हेल्थ। पीयर ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑल ऑफ सेम एज एंड सोशल पोजिशन। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल होते हैं जिसमें कि एक ही एज के पर्सन या फिर इंडिविजुअल पाए जाते हैं। एज देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ लाइज इन द फैमिली। अ फैमिली कैन प्ले वेरियस रोल्स टू अपलिफ्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर। द फैमिली रोल में बी समराइज्ड एज बिलो, है ना। सो एक फैमिली जो होती है वो वेरियस रोल्स प्ले करती है हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए, किसकी? फैमिली मेम्बर्स की। सो द फर्स्ट इज फैमिली एज अ टीचर। फैमिली जो होती है टीचर होती है। पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स इन द फैमिली फॉर देयर चाइल्ड।
फैमिली एज अ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, फैमिली एज अ काउंसलर, है ना, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। फिर फैमिली एज अ मोटिवेटर, एक फैमिली जो होती है वो मोटिवेट भी करती है। फैमिली एज अ मॉनिटर, प्रॉपर फैमिली जो है एक दूसरे के ऊपर मॉनिटर करते हैं फैमिली मेम्बर्स। फैमिली एज अ ट्रेनर, फैमिली ट्रेन करती है बच्चों को। फैमिली एज अ कंट्रोलर, प्रॉपर कंट्रोल करके रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं, सोशली बिहेव करने के लिए सिखाते हैं। फैमिली एज अ केयर टेकर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पीयर ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और एसोसिएट्स usually of similar background, social status and age who are likely to influence a person's beliefs and behavior. That means जिसके द्वारा कि इन्फ्लुएंस होते हैं एक दूसरे के द्वारा, उनके बिहेवियर से, उनके बिलीफ से, उनके ट्रेडिशन से, है ना। फिर उसके बाद है मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीयर ग्रुप ऑफन हैव सिमिलर इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड्स बॉन्डेड बाय द प्रेमाइसेस ऑफ सेमनेस। दैट मीन्स मेंबर्स जो होते हैं उनके सिमिलर इंटरेस्ट होते हैं, सिमिलर बैकग्राउंड होते हैं और वो सेम हर एक बातों में बॉन्डेड रहते हैं। पीयर ग्रुप्स ऑफर द चांस टू डिस्कस इंटरेस्ट दैट एडल्ट्स में नॉट शेयर विद देयर चिल्ड्रन। पीयर ग्रुप में एक ऑफर होता है या फिर एक मौका रहता है हर किसी को कि अपने इंटरेस्ट, अपने आइडियाज़, अपने विचार जो है वो शेयर कर सकें, जो कि वो अपने से छोटे या फिर अपने से बड़ों के साथ शेयर नहीं कर सकते। देन रोल्स ऑफ पीयर ग्रुप इन हेल्थ। फर्स्ट इज सर्व एज अ सोर्स ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन। हेल्थ इंफॉर्मेशन को एज अ सोर्स वो सर्व करते हैं। फिर नेक्स्ट है हेल्प टू रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी थ्रू शेयरिंग द स्ट्रेस और द थॉट्स। मेंटल स्ट्रेस जो है रिड्यूस होता है। हेल्प टू बी एक्वेंटेड ऑन फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस, जानकार बनाते हैं इमोशनल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के। गिव सपोर्ट इन एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस हो या फिर एक्यूट इलनेस हो, फ्रेंड सर्कल में अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा आते हैं। गिव सपोर्ट टू ड्यूरिंग डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के दौरान भी एक पीयर ग्रुप में जो मेंबर अगर डिसेबल है या फिर किसी बात को लेकर प्रॉब्लम में है तो उसको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं थ्रू पीयर। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू पीयर ग्रुप may have very positive roles of health, but in many circumstances there may be very harmful consequences on health, like substance abuse, involvement in criminal activity and sexual abuse. पीयर ग्रुप का जो होता है रोल, एक पॉजिटिव रोल भी हमको देखने मिलता है और अब नेगेटिव रोल भी देखने के लिए मिलता है। बहुत से पीयर ग्रुप में ये होता है कि सब्सटेंस अब्यूज़ की ओर बढ़ जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़, और क्या होता है सेक्सुअल अब्यूजेस भी होता है। सो दीज आर द नेगेटिव रोल्स ऑफ पीयर ग्रुप्स। नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली इन हेल्थ एंड डिजीज़। सो एक फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हेल्थ और डिजीज़ में। सो चाइल्ड रियरिंग मैंने आपको पहले भी बताया। फिर सोशलाइजेशन, किस तरह से एक सोसाइटी में सोशल बनाते हैं बच्चों को। फिर पर्सनालिटी फॉर्मेशन मीन्स किस तरह से एक पर्सन की व्यक्तित्व को उभारना। फिर उसके बाद केयर ऑफ डिपेंडेंट एडल्ट में हम देखते हैं केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड, केयर ऑफ प्रेग्नेंट एंड चाइल्ड बर्थ, केयर ऑफ एजेड एंड हैंडीकैप्ड। ओके, सो next is stabilization of adult personality. It refers to emotional security which is achieved within a marital relationship between two adults. दो adults के बीच में जो marital status रहता है, marital relationship रहता है, उनके बीच में जो इमोशनली जो थॉट्स के एक्सचेंज होते हैं और किस तरह से उसको सिक्योर करके रखा जाता है, उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज़। Next is familial susceptibility to diseases. That means a genetic predisposition is an increased likelihood of developing a particular disease based on person's genetic makeup.
हाँ, जिस तरह से जेनेटिक मेकअप रहेगा, जिस तरह से पर्सन की जीन्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अपने फैमिली में किस तरह से बढ़ता है, या फिर उस जेनेटिक कंडीशन की वजह से जो कैरी कर रहा है वो उसकी वजह से क्या क्या डिजीज़ ऑकर हो सकती है उसकी जीन्स की वजह से। देन ब्रोकन होम्स मैंने पहले भी बताया। लास्ट है प्रॉब्लम ऑफ फैमिलीज। नेक्स्ट स्लाइड इज रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। एक पेरेंट की क्या भूमिका होती है फैमिली हेल्थ के प्रति। रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड इज द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन दे हैव इन टर्म्स ऑफ द एस्पेक्ट इन लाइफ। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी पेरेंट्स की चिल्ड्रंस के प्रति, ताकि उनके लाइफ के लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर सके उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है इट रिफर्स टू द विल, एबिलिटी एंड कमिटमेंट ऑफ पेरेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फैमिली एंड चिल्ड्रन। सो एक किसी पेरेंट्स की जो कमिटमेंट होता है, विल होती है, इच्छा होती है, एबिलिटी होती है किसकी तरफ रिस्पॉन्ड करने के लिए, नीड्स की तरफ फॉर द फैमिली एंड द चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज इट इज़ द एक्ट ऑफ पुटिंग द नीड्स ऑफ चाइल्ड ओवर सेल्फ, है ना। सो एक तरह का एक्ट भी होता है नीड्स के, जो चाइल्ड की नीड होती है उसको पूरा करने का। Now we come to parenting definition. Parenting or child rearing is the process of promotion and supporting the physical, emotional, social and intellectual development of child from infancy to adulthood। ठीक है, पेरेंटिंग या फिर चाइल्ड रेयरिंग जो होता है प्रोसेस होता है जिसमें कि प्रमोट करते हैं और सपोर्ट करते हैं फिजिकली, इमोशनली, सोशली और इंटेलेक्चुअली, ताकि चाइल्ड का डेवलपमेंट हो सके बचपन से लेकर एडल्टहुड तक। फिर नेक्स्ट है पेरेंटिंग इज़ यूजुअली डन बाय द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड, ऑल द गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी टेक्स अ रोल एज वेल एज, है ना। पेरेंटिंग जो होता है यूजुअली आप देखेंगे बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो होते हैं वही करते हैं एक बच्चे की, लेकिन कई बार ये भी होता है कि इसमें गवर्नमेंट्स या फिर NGOs जो हैं, सोसाइटी जो होती है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है जो बच्चे जिनके की पेरेंट्स नहीं होते हैं, है ना। तो उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए स्पेशली ऑर्फन होम्स या फिर आश्रम बनाया जाता है जो जहाँ पर कि बच्चों को रखा जाता है। मैनी केसेस ऑर्फन एंड एबेंडेंड चिल्ड्रन रिसीव पेरेंटल केयर फ्रॉम नॉन पेरेंट ब्लड रिलेशंस, है ना। बहुत सी जगह हम देखे हैं ऑर्फन चिल्ड्रन या फिर भागे हुए बच्चे जो होते हैं उनकी केयर जो होते हैं केयर जो करते हैं बहुत से ऐसे पेरेंट्स करते हैं जो कि बायोलॉजिकली उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। पेरेंटिंग में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स एज सोशल क्लास, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन एक्सेट्रा, है ना। पेरेंटिंग जो होती है बहुत से फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है, वो जो जिसमें कि सोशल क्लास आता है, इकोनॉमिक स्टेटस आता है, एजुकेशन आता है एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं पेरेंट की। अ पेरेंट मस्ट प्रोटेक्ट हिज और हर यंग फ्रॉम फिजिकल हार्म, है ना। एक पेरेंट की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह के फिजिकल हार्म से वो अपने बच्चे को बचा के रखे। प्रोवाइड फिजिकल नेसेसिटीज सच एज फूड, वाटर, क्लॉथिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स, है ना। छोटे जो माइनर इलनेस होती है उससे बचा के रखें, उसको एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लोथिंग नेसेसिटीज़ जो होती हैं, क्लोथिंग होती है, फूड प्रोवाइड करना, वाटर, शेल्टर, है ना। दीज आर ऑल फिजिकल नेसेसिटीज़। प्रोवाइड इमोशनल नेसेसिटीज़, है ना। इमोशनली सपोर्ट करना, उनको प्यार करना, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका असिस्ट विथ एजुकेशन इन प्रिपरेशन फॉर द चाइल्ड टू बिकम अ प्रोडक्टिव एडल्ट, है ना। उसको प्रॉपर गाइडलाइन में पढ़ाना, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना। दिस इज़ आर ऑल द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट। प्रोवाइड मॉरल गाइडेंस सो दैट द चाइल्ड कैन टर्न आउट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, है ना। उसको मॉरल गाइडेंस देना, मॉरल सपोर्ट करना, उसको सिखाना सोसाइटी में हाउ टू बिहेव और हाउ टू बी अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, है ना, जिसमें कि उसको एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बनाया जा सके। सो दीज आर ऑल द
roles and responsibilities of parents. Next slide is parenting education. Parenting education is a course of program which is given to raising successful children, creating competent, confident parents and building स्ट्रॉन्ग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, है ना. पेरेंटिंग एजुकेशन एक तरह का कोर्स होता है या प्रोग्राम होता है जिसमें कि बच्चों को किस तरह से बड़े करना है, किस तरह से उनको ज़माने के साथ चलने के लायक बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, कॉन्फिडेंट पेरेंट्स बनाना है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, उनकी फैमिलीज़ को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, डेवलप करना है और कम्युनिटी में किस तरह से अपना स्टेटस रखना है, ये सब सिखाया जाता है. विथ लव, लिमिट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट्स कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग हैप्पी, हेल्दी एंड वेल बिहेव चिल्ड्रन, है ना. आप किसी चाइल्ड को जब पेरेंट्स हैं उनको प्रॉपर लव करें, उनको प्रॉपर लिमिट्स में रखें, उनको लिमिट्स उनकी बताए जाएं, उनको प्रॉपर डिसिप्लिन में रखें और उनके साथ इन्वॉल्व हो, उनके हर एक लाइफ के पार्ट में इन्वॉल्व हो, जिससे कि एक चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, ग्रोइंग है, वो प्रॉपर डेवलप हो सके, जिसमें कि वो हेल्दी रहे, खुश रहे और वेल बिहेव्ड बन सके. फिर नेक्स्ट है, अ पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम इज़ अ कोर्स दैट कैन बी फॉलोड टू करेक्ट एंड इम्प्रूव अ पर्सन पेरेंटिंग स्किल्स सच कोर्सेज में बी जनरल, है ना. एक पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम एक कोर्स की तरह से फॉलो किया जाता है जिसमें कि पेरेंटिंग स्किल्स को जो है इम्प्रूव करना या फिर उसमें बदलाव लाना किया जा सकता है. सच कोर्स में भी जनरल, इस तरह के कोर्स जो होते हैं जनरल होते हैं, कवरिंग द मोस्ट कॉमन इश्यूज पेरेंटिंग में एनकाउंटर, है ना. जो कि बहुत से कॉमन इश्यूज होते हैं उस पर एनकाउंटर किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक भी केसेस हों तो उसके लिए भी, और इन्फेंट्स के लिए भी, टॉडलर्स के लिए, चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स. These courses may also be geared towards parents who are considered having a child or adopting one or are. So इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो चाइल्ड के ऊपर भी लागू किए जा सकते हैं, या फिर जो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके ऊपर भी लागू किए जा सकते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट हैं उनके ऊपर भी लागू किए जा सकते हैं. So this is the family life cycle, है ना. लाइफ स्टेज ऑफ साइकिल यू कैन कॉल इट. फर्स्ट उसमें देखते हैं आप मैरिज, पेरेंटिंग, चिल्ड्रन, टीनेजर, फिर अगेन फैमिली, है ना. सेकेंड इमेज में आप देखते हैं चाइल्ड बियरिंग स्टेज, पेरेंटिंग स्टेज, देन लॉन्चिंग स्टेज, मिड ईयर स्टेज, एजिंग स्टेज, देन और अगेन बिगिनिंग स्टेज. ओके, थैंक यू.